Assalamu alaikum. You are watching Zeb FM Digital, brought to you by Dr. Kamran Sumro, HR Pavilion Season 2. I am your host Mohammad Sani Farooq. The person sitting in front of me is Abdul Mannan, which have a wide experience of HR, working in 7 years, and currently he is working in NLC as an HR manager. Hanan, please give us your introduction. I will thank you for that. Yes, my name is Abdul Mannan, as you have introduced me. Basically, I have diversified experience in the field of HR. I started my career from food industry, then switched to textile, and then currently I am working in largest public sector organization in logistics sector, which is National Logistics Corporation. And here I am performing different HR roles, and basically the main role of mine is to link the business with the मैन पावर. ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपके बिजनेस से किस तरीके से अलाइन करना है और जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन की उसको देखते हुए है बेहतर से बेहतर रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना. Thank you. So, starting with my first question is that how much CV is important for a person or an individual who is applying for a company? Basically CV is your you can say your first view. You are selling yourself. That CV is your template by which you are selling yourself. So you cannot ignore the importance of the CV. I don't know you before reviewing your CV. So that is the CV that introduce you in front of me as an interviewer. Okay. So my second question is that do you think that incentives are more important than salary? Basically, yes, they are if it is utilized effectively. अगर इंसेंटिव को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और राइट पर्सन फॉर द राइट इंसेंटिव अगर मैं कहूँ तो वो सैलरी से ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो सैलरी है वो आपको एक रूटीन वर्क लगता है, वो तो हर किसी को मिल रही है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? Basically, that is the incentive that creates a difference. That creates an environment which push the employer to perform better and better and better. So you cannot ignore the importance of the incentive. And in my view, incentive has more importance over salary. Okay. Can you describe the employee incentive? You can say devotion or the eagerness of incentive in your organization? Yes, basically there are two types of motivation. If I explain, one is intrinsic, second is extrinsic. So basically incentives works sometime gives you intrinsic motivation and sometime gives you extrinsic motivation. अगर मैं ऐसे आपको एग्जांपल दूं कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आपको 10 लोगों के सामने आके आपको अप्रिशिएट किया जाए, दैट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो आपको ज़्यादा ड्राइव करती है एज कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक. अगर आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, अगर आप अंदर से आप चार्ज हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. आपको देखना है कि एम्प्लॉय जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है, वो आपको देखना है, उसके मुताबिक आपको फैसला करना. So my next question is that have you ever conducted any sort of incentive program or something like that to your organization, or in previous organization you have discussed with your supervisors or bosses or upper management that incentives should be increased or might be some other incentives could be given to the employees for more motivation of work? Yes, I have implemented. If I give you example of my first company, that was Pearl Food Industries. It was an FMCG. तो वहाँ पे ऐसा था कि हम हर महीने एक एम्प्लॉय जो बेस्ट परफॉर्मर था उसको हम 1000 का बॉन्ड देते थे और सबके सामने बुला के उसकी एक एप्रिसिएशन होती थी, उसको बॉन्ड मिलता था. और फिर वो जो भी उस थ्रू आउट द ईयर फिर हम एक अपना डेटा कलेक्ट करते थे कि कौन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ले रहा है, फिर उसका एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आप उससे निकालते थे. तो बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं. अब ऐसे मिसाल दो, एनएलसी के अंदर क्या है कि बिजनेस यूनिट और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस दोनों को लिंक किया हुआ है. अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन आप जिस बिजनेस यूनिट में काम करें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए.
मैं ऐसे मिसाल दूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस का टारगेट है 1 बिलियन, लेकिन वो 1 बिलियन अचीव नहीं करता, और अगर आप ए कैटेगरी ले भी लेते हैं तो आपको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा जो यूनिट भी आपका 1 बिलियन का टारगेट अचीव करता और आप भी अपनी ए ग्रेड लेते तो आपको मिलता। तो ये अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इंसेंटिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक करके इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बढ़ा रही होती है। Do you think that incentives plays an important role in your job descriptions or not? Because if I say you about the culture of pharma industry and textile industry are both booming industry, and they are giving you more incentive than the local ones, or you can say from the other particular industries. So do you think that the people will switch their careers or having a more motivation towards their incentive and working environment, or no, or they will just like to do what they want to do? यस, लाइक आई सेड अर्लियर के अब मोटिवेशन के दो पैरामीटर, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फार्मा सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर आपको अच्छे पैसे दे रहा है या अच्छा इंसेंटिव दे रहा है तो वो आपको रिटेन कर लेगा या आपको गेज कर लेगा। अब बहुत सारे और तरीके भी होते हैं। मैं ऐसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अप्रिसिएशन अच्छी मिल रही है, योर परफॉर्मेंस इज बीइंग रिकग्नाइज्ड इन योर करंट कंपनी, अगर आपकी करंट कंपनी में आपको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, लीडरशिप में, आपके स्किल्स को डेवलप करने में। जैसे मैं अगर आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल दूं, हमारी एनएलसी में पे पैकेज कम होंगे एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? एनएलसी का नाम। अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, वो भी इटसेल्फ मोटिवेशन है एक एम्प्लॉय के लिए कि यार मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हूँ जिसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है। और उसके साथ मैटर कर रहा होता है कि आपको कितना जो है ना आपके परफॉर्मेंस जो है उसको कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर टीम के अंदर आपकी वैल्यू है, आपका मैनेजर आपको वैल्यू देता है तो आप अपने, और वैसे भी कहते हैं कि एम्प्लॉयज लीव द बॉस, तो आप अपने बॉस को आपको छोड़ने का दिल नहीं करेगा अगर भले आपको बाहर जो है वो अच्छा इंसेंटिव मिल भी रहा हो तो ये बेसिकली अब आपको जो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर होता है उसके बाद बहुत मैटर कर रहा होता है कि वो एम्प्लॉय की इनर साइड को समझ के उसको अपने साथ लेके चले उसको। Okay. So the next question is that do you think that proper incentive or equality of incentives is given to each and every employee? Because I think that this is a very difficult task for an HR to give an equal and for the gender specification, or you can say for the lower management or middle management, upper management. So I want to ask that question again from you that do you think that fairness of incentive is given to each and every employee? You cannot ensure fairness up to 100%. Man-made system has flaws. तो उस तरीके से आप 100% कभी भी ना इक्विटी को इंश्योर कर सकते ना फेयरनेस को इंश्योर कर सकते। बेसिकली होता यह है कि मैक्सिमम आउटपुट आप क्या दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आज की आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक वार्निंग लेटर आता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज के बारे में लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग बिलो एवरेज, लेकिन उसका जो एनुअल अप्रेजल है उसमें उसको आउटस्टैंडिंग मिली हुई है। तो यहाँ एचआर का काम है कि वो उस आईओ से पूछे, उस लाइन मैनेजर से पूछे कि अगर ये इतना ही कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था तो जब एचआर ने आपसे अप्रेजल फिल करने को कहा तो तब आपने इसको आउटस्टैंडिंग क्यों ग्रेड किया। तो मैंने जो है फर्स्ट एक्शन ये किया कि मैंने उस लाइन मैनेजर को लेटर लिखा और कहा कि इफ ही इज कंटिन्यूसली बीन परफॉर्मिंग लो तो आपने फिर क्यों उसको आउटस्टैंडिंग ग्रेड किया। तो बेसिकली आप इंश्योर तो नहीं करा सकते 100%, लेकिन एचआर एक चेक लगा सकता है जिससे आप ये छोटी छोटी चीज़ें डाल के आप इंश्योर करवाते हैं लाइन मैनेजर से कि आपने एक पैरामीटर्स के तहत ग्रेड करना किसी को, ना कि जो है वो एक रैंडमली आपने उसको ग्रेड कर देना। Okay. So the next question is that for the particularly sales department, you have an incentive of the profit margin of what you have sold. But for other departments, what are your criterias, what are your thinkings, or what are your HR policies for giving them incentives? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए दो किस्म के पैरामीटर्स होते हैं, तो फाइनेंशियल जैसे लाइक यू सेड के प्रॉफिटेबिलिटी को देखना, सेल्स को देखना, दूसरा नॉन फाइनेंशियल। कि नॉन फाइनेंशियल से मैं ऐसे कहूँगा कि कस्टमर सपोर्ट में आपका क्या रोल है,
ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट एक नॉन फाइनेंशियल एक है। उसके अलावा आप डिजिटलाइजेशन कितनी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक सिस्टम कितना डेवलप कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एनएलसी के अंदर अगर मैं एनएलसी की बात करूं तो एनएलसी अपने जो जब बिजनेस यूनिट को ग्रेड कर रही होती है तो वो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स पे नहीं ग्रेड कर रही होती, वो ये भी देखते हैं कि अगर इसने 1 बिलियन कमाया है तो 1 बिलियन के साथ इसने अपने आप को डिजिटलाइज कितना किया, इसने इस यूनिट ने मार्केट के अंदर अपना शेयर कितना डेवलप किया। क्योंकि प्रॉफिट या सेल्स कभी कभी इन्फ्लेशन की वजह से भी ड्राइव हो रही होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो है वो आपने इन रियल टर्म पैसा ज़्यादा कमाया, वो इन्फ्लेशन और डिफरेंट टेम्परेरी मैटर्स की वजह से भी ड्राइव कर रही होती है। तो कस्टमर सपोर्ट और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपो है मार्केट के अंदर, उस पैरामीटर्स को जज भी करके भी आप उसका केपीआई डिफाइन करते हैं। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल आपको दोनों टर्म्स में आपको देखना पड़ता है। अब जैसे अगर आप एचआर की बात करें तो अब एचआर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एक अच्छी रिसोर्स को हायर करना। जब तक अच्छी रिसोर्स नहीं आएगी वो बेहतर सेल्स भी नहीं ला सकता और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर रेपुटेशन भी मार्केट के अंदर नहीं दे सकता। अगर आपने अच्छी रिसोर्स नहीं ली, वो आपकी जो ब्रांड नेम है उसको ख़राब ज़्यादा कर सकता है बनस्बत उसको अच्छा करने की। Moving forward to the next question is that have you ever conducted a training sessions or given training to the HR employees or subordinates regarding incentives that we should be setting this trend or this kind of thing in our culture and our organization? Have you ever done that in your previous organization or the current organization which you are working in? Yes, I have done that. For example, if you talk about NLC, हमारे यहाँ जो है वो मंथली बेसिस पे कैश प्राइस का भी एक अरेंजमेंट होती है। तो हमने मुख्तलिफ किस्म के केपीआई डिफाइन किए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे यहाँ जो मेन कोर लेबर है वो है एससीवी ड्राइवर, जो हैवी व्हीकल का ड्राइवर है। तो वी हैव सेट द केपीएल किलोमीटर पर लीटर, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रैवल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमारे लिए वो एससीवी ड्राइवर ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो जो हमें वो बचा के दे रहा है हम उसी का शेयर उसको वापस टर्न करते हैं। तो हम अब HSC जो है हमारा डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी, वो ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे के उनसे इंश्योर करवाता है कि आपने एक्सीडेंट्स को और आपने लॉस को कम से कम करके आपने अपना फ़ायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो वहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जिसके तहत जैसे उम्रा स्कीम्स हैं, इसी तरीके से हम प्राइस मनी दे रहे होते हैं। तो वो हम उसमें यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि उसने कंपनी को कितना फ़ायदा पहुंचाया इन टर्म ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। So have you ever faced any challenges or some kind of difficulties for ensuring that the amount of incentives is properly reached to the employees? Yes, जब आप HR में होते हैं, HR जो है वो इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। आपको हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स के मुताबिक खुश भी करना है, आप लूज किसी को भी नहीं करना चाहते। और आपको अब सेल्स डिपार्टमेंट ये समझता है कि पैसा तो हम ला रहे हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स ज़्यादा सेल्स लेके आ रही है। और फिर अब अगर एनएलसी की आप बात करें तो एनएलसी में बहुत डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग मौजूद हैं, जिनका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना अपना एक सोच है, इंसेंटिव से रिलेटेड भी और अपने जॉब से रिलेटेड भी। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनजर रख के आपके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है कि आप किस तरीके से सबको खुश कर सकें और सबको साथ लेके चल सकें। तो बिल्कुल डेली बेसिस पे एक चैलेंज होता है कि आप किस तरीके से फेयरनेस को इंश्योर करें। Just for a time being, I was thinking about that do you think or might be a second thought come in your mind while hiring a person that I am offering something to you and he will rejecting it for the sake of incentive? Do you think that this is possible that a person or an employee is rejecting your offer only on the basis of incentive? Do you think that? It depends on the specific person कि वो क्या चाह रहा है, क्या उसके लिए इंसेंटिव की वैल्यू ज़्यादा है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने की वैल्यू ज़्यादा है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर कंपनी का नाम बड़ा है तो आपके लिए कंपनी के साथ अटैच होना ज़्यादा मैटर करता है बनस्पत के इंसेंटिव या सैलरी के। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है उस बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर कि वो चाह क्या रहा है, उसका ड्रीम क्या है।
अगर तो उसका ड्रीम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होने का है तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ कर जाए, वो इंसेंटिव को, इन चीज़ों को शायद ना देखे। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको कितना ड्राइव कर रही है बहुत ज़रूरी है। तो ये वेरीज करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Okay. So, while recruiting a person, is there anything you have noticed or someone asked that, okay, this is my salary package, what further incentives are you offering me? Or while recruiting, you have something in your mind to tell the employee or your people, the person who you're interviewing is that these are the incentives which we can offer you, or you just don't offer the incentives? बिल्कुल, जब एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट के लिए हायरिंग होने के लिए आता है तो जाहिर है वो सिर्फ सैलरी के बेस पे डिसीजन नहीं कर रहा होता, वो मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा होता है। वो यहाँ तक भी देख रहा होता है कि वर्किंग आवर्स आपके क्या है, क्या वीकेंड ऑफ है कि नहीं है। ये चीज़ें इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज में तो इसको आप नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन वो ये देख रहा है कि मैं अगर जिस कंपनी में अगर वहाँ वीकेंड ऑफ है तो क्या वहाँ है कि नहीं है, मैं जिस कंपनी में वर्किंग आवर्स अगर इतने हैं तो इनके वर्किंग आवर्स कितने हैं। तो बिल्कुल, और उसके साथ जो है वो लंप सम कैलकुलेट कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल सैलरी अगर 200K है और बेनिफिट्स कुछ नहीं है, और एक कंपनी है जो 150 दे रही है लेकिन बेनिफिट्स उसके बहुत अच्छे हैं, लाइक वो मेडिकल में भी सपोर्ट कर रही है, वो आपको बोनसेस भी दे रही है, वो आपको एजुकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम भी दे रही है। लाइक मैं अगर NLC की बात करूँ तो NLC के पे पैकेज शायद कम हो लेकिन वो बाकी बेनिफिट्स में बाकी कंपनीज को पीछे कर देती है। फॉर एग्जांपल हमारे एजुकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम भी है, जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है हम उसकी एजुकेशन भी फंड करते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब वो ओवरऑल अपने लमसम कैलकुलेट करता है तो उसको मोटिवेट करती है टू ज्वाइन दैट कंपनी। तो बिल्कुल सिर्फ सैलरी इस पैरामीटर नहीं होता कंपनी में जाने या ना जाने का। तो रिक्रूटर को जो है वो बेनिफिट्स के, सैलरी को बेनिफिट्स के साथ प्लस करके अगले बंदे को अपने तरफ गेज करना होता है। If your key employee is leaving your organization and you need him the most, and he said, no, I just don't want to work with you, I have find a better organization for that, do you think that by increasing his incentives or offering him more incentive or moving his designation will give a change in his mind to stay in the organization, or once he decided to leave he will leave? Again I will say it matters person to person. जैसे मैंने कहा ना कि फिर मैं दोबारा लफ्ज़ यूज़ करूँगा इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिंग का। अगर तो वो इंटरनली मोटिवेट नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए, वो किसी वजह से भी डिमोटिवेट हो चुका है, जो उसकी इनर साइड अगर उसकी ज़्यादा मोटिवेट करे उसको कि नहीं मैंने अब रहना ही नहीं है, तो शायद उसको ये मॉनेटरी टर्म उसको शायद अट्रैक्ट ना कर सके। लेकिन एक बंदे को मॉनेटरी जो बेनिफिट है वो अट्रैक्ट कर रहा है, इनर से वो कंपनी के साथ है, उसको बड़ी कंपनी अच्छी लगती है, यानी कि इनर से वो मोटिवेटेड है, लेकिन जिस कंपनी की तरफ वो जा रहा है वो उस कंपनी ने उसको मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा दिए, इससे छोड़ के जा रहा है, तो उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको रिटेन करना बहुत आसान है कि आपने एक छोटा सा बेनिफिट बढ़ा दिया या आपने जॉब इनरिचमेंट या इनलार्जमेंट थोड़ी सी कर दी और आपने उसको रिटेन कर लिया। लेकिन अगर एक बंदा इनर से ही डीमोटिवेटेड है हाईली और वो एग्जॉस्ट हुआ हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो उसको रिटेन करना फिर मुश्किल है। आप जितने मर्जी उसको इंसेंटिव या जितने मर्जी आप उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफर कर दें, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन हिम। Okay, so in rapidly changing of the environment, because as you see that if I go in past few back years, almost a decade, there was different procedures for giving an incentive, and today we have a different procedure of giving incentive. So in the rapidly changing of the environment, what are your strategies or what innovation you have bring to your organization or working in the previous organization, or what you have learned through that this incentive or this strategy will attract an employee or working in your organization will stay with you with loyalty? बेसिकली डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन एनहांसमेंट या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर आपकी कंपनी के अंदर है, अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ऑनलाइन कोर्सेज का और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, जहाँ अब हर बंदा नई से नई चीज़ सीखना चाह रहा है। अगर आपकी कंपनी ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है जो आपको उन प्लेटफॉर्म को की जो नॉलेज है उसको एक्वायर करने के लिए फंडिंग करे,
तो वो इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एनएलसी में हमने अभी इंट्रोड्यूस करा है अपना जो प्रमोशन का हमारा पॉलिसी थी, उसमें हमने 15% ऑफ एजुकेशन का रखा है कि जितनी ज़्यादा उसकी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एचआर मैनेजर के लिए एमबीए रिक्वायर्ड है, ये उसकी बेसिक एजुकेशन है। लेकिन अगर उसने एमएस किया हुआ है एचआर में, उसके 15% है। अगर उसने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है तो उसकी एक वेटेज है। तो आप प्रमोशन की जो क्राइटेरिया है उसमें स्किल्स को डाल के और मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डाल के आप एम्प्लॉय को इससे मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार अगर मैंने ये सर्टिफिकेशन ली, अगर मैंने ये कोर्स लिया तो नेक्स्ट टाइम पे मेरा प्रमोशन में मेरा चांस ज़्यादा बनेगा। तो ये भी एक तरीका होता है एम्प्लॉय को कि जो कंटिन्यूस लर्निंग होती है उसमें उसको एंगेज करने का। तो ये वो इस तरह भी इवॉल्व कर रहे होते हो वक्त के साथ साथ, कि जब आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी जिसमें एम्प्लॉय को ये पता है कि मैं जितना अपने आप को अप टू डेट रखूंगा उतना ही मेरा चांस आगे ग्रो करने का। अगर कंपनी की पॉलिसी ऐसी होंगी तो फिर आपको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे इवॉल्विंग के साथ साथ अपने आप को मैच करने के। Okay. So, while you said that you have attended the training sessions and you have going through the seminars of workshop employee branding, so I want to ask you that are you ready now to give that training session in your organization, or have you conducted that training session in your organization that people will adore you that this person has think for us for increasing our incentive or giving you more through this knowledge, that this also plays an important role in your job description? बिल्कुल, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को जो कल्चर होता है ना, इस पर बहुत मैटर कर रहा होता है आपके जितने भी डिसीजन होते हैं। अगर कल्चर सपोर्टिव नहीं है तो आप एक बड़ी पोजीशन पर हो के भी आप फैसले नहीं कर सकते एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए। तो कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो अपर लेवल पे जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उसकी क्या सोच है वो बहुत मैटर कर रही है। तो अब बिल्कुल जब अपर लेवल की अपर मैनेजमेंट है वो बहुत प्रोग्रेसिव हो तो नीचे ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती जाती हैं, और आप एम्प्लॉय से, हमारे यहाँ फीडबैक का एक पूरा प्रोग्राम है। हम फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉय से, उनकी क्या क्या वो मसले मसाइल हैं। एनएलसी का एक पोर्टल है एम्प्लॉय से जिसमें वो एनोनिमसली रह के अपने जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो इंसेंटिव्स रिलेटेड हो या चाहे वो वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, वो उसमें कंप्लेन कर सकता है बगैर किसी को पता चले। विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज नेम ही कैन कंप्लेन। तो ये वो अब उस पोर्टल के हवाले से अवेयरनेस देना, लाइक करंटली अवेयरनेस दी है उस पोर्टल के हवाले से कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस पोर्टल में जाए, आपको एचआर से प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंस से प्रॉब्लम है, या आपको व्हाटएवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज आप समझते हैं कि मजीद बेटर होनी चाहिए, तो आप उस पोर्टल में जाए, अपना फीडबैक दें। उस फीडबैक के डेटा से हम फिर ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि एम्प्लॉयज चाह क्या रहा है, और उसी के मुताबिक हम इंसेंटिव भी अपने डिफाइन कर रहे होते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे जो ड्राइवर है वो हमारा कोर जो है वो एम्प्लॉय है, वो गाड़ी चला रहा है तो बिजनेस आ रहा है हमारे पास। तो अब ड्राइवर की मोटिवेशन सिर्फ सैलरी नहीं है, वो ये कहता है कि मैं जितनी रनिंग करूँ मुझे उतने ही पैसे मिले। अगर उसकी मैं फिक्स सैलरी कर दूंगा शायद वो उस लिहाज से गाड़ी को ना चला सके। तो अब उसके बाद हमने क्या किया कि 5000 किलोमीटर का मिनिमम रखा, वो उसकी सैलरी है, 5000 किलोमीटर वो इंश्योर कर रहा है। 5000 किलोमीटर से ऊपर जितने ज़्यादा करता जाएगा उतने ज़्यादा उसका मॉनेटरी रिटर्न बढ़ता चला जाएगा, और वही उसके केपीआईज को और उसके बोनस को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये वो चीज़ें होती है जिसके ज़रिए से आप एम्प्लॉय को थ्रू आउट दी ईयर जो है कंपनी के साथ अटैच करके उसके परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उसके साथ आप देख के चल रहे होते हैं। Okay, that was a very particular thing I have learned. So, do you think that in now is while working in this generation or while working with the younger people, they are more towards incentive rather than the salary packages or the organization name or culture, that what incentive we are getting from this company or other company? Do you think that incentive plays more role over the salary, job rotations, job culture, environment? Do you think that this time has changed from the past few years or no? Yes, basically अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए इंसेंटिव का जो वेटेज है वो अब सैलरी से ज़्यादा होता जा रहा है। क्योंकि सैलरी तो ठीक है, वो आपको सैलरी से आप घर से उठ के जॉब पे आ रहे हो, सैलरी आपको इतना ड्राइव कर रही है कि आप जॉब पे आ रहे हो, लेकिन जॉब पे आपने परफॉर्म कितना
चार्ज होके करना है, एनर्जाइज होके करना है, उसमें इंसेंटिव का बड़ा रोल है। अगर तो आपको पता है कि मुझे सैलरी मिलनी है और बस और कुछ नहीं है, तो शायद आप अपनी जॉब में कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स ना करें। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मैंने अगर ये काम इससे अच्छा किया तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ मिल सकता है, तो आप अपनी जॉब में आउट ऑफ द बॉक्स करने का सोचेंगे, इनिशिएटिव भी लेंगे, क्रिएटिविटी भी लाएंगे और अपनी जॉब को यूटिलाइज करके कंपनी को बेनिफिट भी देंगे। तो सैलरी जो है वो मंथली आपके पास आ रही है, वो आपको सिर्फ इंटैक्ट कर रही है जॉब के साथ। इंसेंटिव आपको रोज एनर्जाइज कर रहा है, इंसेंटिव आपको रोज मजबूर कर रहा है कि आपने अपने से, जैसे मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है बायनुअल, जो इंटरनल कंपटीशन क्रिएट कर रहा है। लाइक अब 4 बंदे हैं तो हमने सिर्फ एक को ही ए देना है, हमने जस्ट 20% को ए देना है। अब आपके पास अगर 10 एम्प्लॉयज है, 20% का मतलब है अपने सिर्फ 2 को ए देना है। तो अब उन 10 लोगों के अंदर कंपटीशन चल रही है कि यार मुझे ए मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ए मिलेगा तो मुझे उतने ज़्यादा मुझे इंसेंटिव मिलेगा। एग्जैक्टली। तो जब आपने इंटरनल कंपटीशन को ड्राइव कर दिया तो जस्ट आके रूटीन वर्क 9 to 5 करके आप फिर घर नहीं जाओगे, फिर आपको पता होगा कि मैंने उस 20% में आना है, तो ही मुझे ज़्यादा फायदा होगा, अदरवाइज मैं उससे पीछे रह जाऊंगा। फिर वो जो आपकी ग्रेडिंग होती है, लाइक अब हमारे यहाँ मैं अगर एनएलसी की मिसाल दूँ तो जो डायरेक्टर है एनएलसी के, जिसको आप एमडी कह लें, उनकी तरफ से एप्रिसिएशन लेटर आता है रावलपिंडी से। अब अगर आपने ए कैटेगरी ली हुई है तो आपको एप्रिसिएशन लेटर आएगा रावलपिंडी से, आप उसको, और वो एक पैक एनवेलप में आता है कि आप उसको खोलते हैं, आपको फील होता है। तो बेसिकली अब वो जो आपकी ए कैटेगरी थी वो मॉनेटरी टर्म में तो आपको फील दे रही थी, लेकिन वो जो एप्रिसिएशन लेटर आता है आपके पास प्राइवेटली, वो आपको ज़्यादा चार्ज करता है। तो आप सैलरी को बहुत को पीछे छोड़ जाते हैं, और वो जो आपका एप्रिसिएशन लेटर होता है और वो जो आपने ए ग्रेड लिया होता है, 10 में से आप टॉप 2 में आए होते हैं, वो चीज़ आपको चार्ज करके रखती है और आपको एनर्जाइज करके रखती है थ्रू दी to get the better results. Okay, moving forward for my second last question. It's a very important question because I think that this should be answered because every employee is waiting for that to answer. While hiring an employee, you have seen his CV, you have seen his resume, whatever, you have hired a person, but if he is performing his task better and he is also have another skill which give a beneficial for an organization, basically मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो बेनिफिट ऐड कर रही है, उसकी जो जेडी है वो एक बेनिफिट ऐड कर रही है, एंड साथ में उसके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जाम्पल इफ पर्सन इज हायर फॉर एन HR and he has a digital marketing skill with him and he is doing work for the company of digital marketing also, do you think that he should be paying more incentive? Yes, he should have more incentive than any other employee. अगर आपके पास कोई भी स्पेशल फीचर है, देखिए अब आजकल जो एम्प्लॉय की मिसाल एक मोबाइल की तरह है, मोबाइल में जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है। और अब स्पेशली अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो बहुत ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से सैचुरेटेड मार्केट है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है। तो उसमें जितने ज़्यादा आपके फीचर्स आपके पास एक्स्ट्रा होंगे, एक तो उससे जॉब में आपको फ़ायदा होगा। अब उसके बाद आप बात करें जॉब के बाद आपको फ़ायदा होता नहीं होता, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कंपनी कुछ भी इंसेंटिव नहीं भी दे रही ना, तो वो जो आपका एक स्पेशल फीचर है ना, वो आपके जो डिपार्टमेंट की जो आपकी जो टीम है उससे आपको खुद ही निखार देता है, और आपके मैनेजर को भी एक आइडिया होता है कि यार इसके पास जो है ये स्पेशल क्वालिटी है, तो इसको मैं कभी लूज़ नहीं करूँगा। मैं इस दूसरा जो इसका कॉम्पिटिटर उसको लूज़ कर सकता है, इसको लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ये स्पेशल फीचर है जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। इंसेंटिव होना चाहिए, लेकिन अगर ना भी हो तो वो जो उसकी स्पेशल क्वालिटी है वो इटसेल्फ उसको डिफरेंशिएट कर रही होती है फ्रॉम अदर्स, और उसको कहीं ना कहीं उसका जब प्रमोशन होगा, जब कोई भी एप्रिसिएशन की बारी आएगी, तो वो उसको डेफिनेटली उसको प्रीफर किया जाएगा ओवर एनी अदर पर्सन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, एक आखिरी सवाल कि आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे थ्रू दिस पॉडकास्ट, या क्या आप ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे एम्प्लॉयज़ को या वो लोगों को जो अप्लाई करते हैं फॉर
जॉब और फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या गलती कर रहे हैं, या वो क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शेयर करें कि इस चीज़ के पीछे ना भागो, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करो, जो आपके दिमाग में मैसेज है फॉर इवन अगर आपके इंसेंटिव्स के बारे में भी अगर कोई बात ऐसा मैसेज आप देना चाहें। मैं दो बातें करूंगा, एक तो इंसेंटिव्स के से रिलेटेड भी करता हूं मैं। देखिए, इंसेंटिव्स से ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रीट कैसे कर रही है। इंसेंटिव मैंने कहा ना, मॉनेटरी बेनिफिट्स फिर भी सेक्रीफाइस किए जा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, उसको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे रहा हूँ लेकिन अब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, या आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है लेकिन आपको जो बॉस है वो आपके साथ बिहेव करता है, आपको हर बात पर गालियाँ सुनने को पड़ती है, तो शायद आप आधी सैलरी में भी छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपका इनर साइड से आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं हो तो ये जितने एक्सटर्नल जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो बहुत सी छोटी कंपनीज भी एक अच्छा रिसोर्स रिटेन कर लेती है जस्ट ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंट, वर्किंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, और बहुत सी बड़ी कंपनीज अच्छा एम्प्लॉय रिटेन नहीं कर पाती ड्यू टू टॉक्सिक इन्वायरमेंट। तो आपका जो वर्क रिलेटेड इन्वायरमेंट है, जो बॉस टू सबऑर्डिनेट रिलेशन है, जो आपका डेली बेसिस पे जो आई टू आई आपका एक कन्वर्सेशन चल रही है, उसका बड़ा बहुत मैटर करती है वो। तो आप जब भी किसी कंपनी में जा रहे हो तो उसके कल्चर, उसके एनवायरनमेंट को भी देखें, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो उसके बेनिफिट बहुत अच्छे हों, लेकिन जब वो वहाँ जाए तो उसका जो एक वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट वो आपको अच्छा ना मिले, तो आपको फिर डिमोटिवेशन होगा, आपको डिप्रेशन होगा। तो आपने जस्ट इंसेंटिव की बुनियाद पर फैसला नहीं करना, आपने ये भी देखना, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए exactly. आपके लिए बाकी रिलेशन भी इम्पोर्टेंट करता है, इम्पोर्टेंस उसको रखते हैं वो रिलेशन भी। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और अपने आप में खुद को भी देखना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या। हर बंदे के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बेहतर अपने आप को समझते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसी के मुताबिक फैसला करें। जैसे वो कहते हैं नो योर सेल्फ, तो अपने आप को जाने और उसके मुताबिक फिर आप फैसला करें किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक वैसे बात अब आपसे एक सवाल करूँगा कि अगर एक रूम में 7 खरगोश छोड़ दिए जाएं और आपको कहा जाए कि आपने सबको पकड़ना, तो आप कैसे पकड़ेंगे? अब ये मेरा एक आपसे सवाल है। जो सबसे अच्छा होगा उसको पकड़ेंगे। देखिए, हाँ, ये आपकी है। देखें, अब आपके पास 7 खरगोश है ना और आपको किसी को पकड़ना है, तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक टारगेट करेंगे। एग्जैक्टली हम टारगेट मैं इस खरगोश को पकड़ूंगा, बाकी 6 को मैं नहीं देखूंगा, मैं पहले इसको पकड़ूंगा फिर बाकी 6 हैं। बिल्कुल सही। यानी कि आपने अपना खरगोश पहले डिफाइन करना है। बिल्कुल कि मैंने ये हुआ खरगोश है, जब तक मैं इसको पकड़ नहीं लूंगा ना, मैं जब तक दूसरे खरगोश पर नहीं जाऊंगा। और अगर मैं ऐसी है पैकेट में चला जाऊं कि ये हाथ में आ जाए, ये हाथ में आ जाए, तो कोई खरगोश हाथ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। तो आप जिस फील्ड में भी है ना, आप अपना खरगोश सेट कर लें कि ये मेरा खरगोश है और इसको पकड़े बगैर मैं दूसरे तीसरे चौथे की तरफ नहीं देखूंगा। तो आप ऑटोमेटिक जो है खुद ही अपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें एक्सेल करते जाएंगे। हमारा मसला ये हुआ है, अब डिजिटलाइजेशन की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हमारे एक से ज़्यादा फोकस होगा, ये नहीं मिला तो ये पकड़ लो, वो नहीं मिला तो ये पकड़ लो, जिसकी वजह से वो जो एक आपका एक अपने फील्ड को देखते हुए फोकस आपका आउट हो गया, वो आपका अब डाइवर्ट हो गया। तो बेसिकली ये मेरा मैसेज है कि आप डेली बेसिस पे ये देखें कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ क्या उसका ताल्लुक मेरे गोल से है, क्या वो जैसे मैंने कहा वो मेरा खरगोश है जो मैंने पकड़ना है। अगर तो उससे है तो वो आप काम करें, अगर तो उससे नहीं है तो उसको छोड़ दें। और बल्कि कहते हैं कि इफ यू हैव मोर देन 2 फोकस इट मीन्स यू हैव नो फोकस। एग्जैक्टली ठीक है, तो अपना कोई भी एक फोकस रख के अपना जो एक क्राइटेरिया आप रखें कि मैंने ये करना है और फिर वही करें। सिर्फ आप खुद ब खुद उसमें एक्सेल कर जाएंगे। हमारा मसला है कि हमारे जिस सब्जेक्ट में 10 में से 4 नंबर आते हैं, हम उस पर तवज्जो देते हैं, जिसमें 10 में से 8 हैं उसको 10 नहीं करते। अगर हम जिसमें हमारे 8 आ गए, इसका मतलब मैं उसमें स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे उसमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है अब, ताकि जब भी उस सब्जेक्ट की बात आई तो लोग आपको कॉल करें। एग्जैक्टली जब भी जरूरत पड़े उस सब्जेक्ट में तो लोग बोले ये 10 आउट ऑफ 10 वाला है।
तो हम क्या करते हैं, हम वीकनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जिस पे मेरे As compared to working on the एज strength. कम्पेयर टू स्ट्रेंथ। वीकनेस है आपकी, रहेंगे आपके साथ, आपने उसको इग्नोर करके आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना और उसमें 10 में से 10 नंबर लेने। तो यही मेरा मैसेज है कि एक तो अपना गोल जो है वो आपको पता हो आपने करना क्या है और फिर उसी पे ही आप रहे, और दूसरा जो है वीकनेस पे नहीं जाए, आपकी वीकनेस ओवरकम हो जाएंगी अगर आपने स्ट्रेंथ पे काम कर लिया। तो आपने स्ट्रेंथ पकड़ो और उसमें 10 में से 10 ने बनिस्पत जिसमें आपके 10 में से 4 नंबर है, आप उसी के बारे में सोचते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर मनान, अब्दुल मनान। बहुत अच्छा टाइम आपने दिया हम लोगों को, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस विद अब्दुल मनान। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।